دیکھو تو مسئلہ یہ ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ 75 سے 80 روپے کا بک رہا ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ چینی 110 سے اوپر بک رہی ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی ہے، وزیر اعظم کو علم نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے۔ 4 دن اس وزیر اعظم کے وزراء لگے رہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے، پرچہ درج ہو گیا ہے۔ میری ان سے گزارش ہے پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گواہی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے۔ آج پورا ملک رو رہا ہے، ہنس کون رہا ہے؟ ہندوستان اور مودی۔ پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے؟ میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ میرا ان کو چیلنج ہے، باہر نکلیں، ایف آئی آر میں شامل ہوں، ملزمان کو گرفتار کریں، کیس چلائیں کھلی عدالت میں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سے غدار۔ غدار وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ یہ جس واقعے کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی اٹھ کے تو جا کے ایف آئی آر کر سکتا ہے، کسی کے خلاف کر سکتا ہے، حکومت اس معاملے میں نہیں ہے۔ حکومت نے اپنے 2 سالہ دور اقتدار میں قوم کو اپوزیشن کی چوری اور گرفتاریوں میں الجھائے رکھا۔ جب بات نہ بنی تو ایک قدم آگے بڑھ کر بغاوت اور غدار کی صدائیں لگانا شروع کر دیں۔ نئے پیکٹ میں جب پرانا منجن بھی نہ بکا تو آئیں بائیں شائع کرتے ہوئے اسی پرانے بیانیے پر قائم رہنے کا فیصلہ ہوا کہ اپوزیشن غدار نہیں صرف چور ہے۔ جی ہاں، جو اپوزیشن کل تک چور تھی وہ کچھ دنوں کے لیے باغی اور غدار ہوئی، مگر آج پھر واپس چور ہو گئی ہے۔ قوم کو سیاسی مقدمات سے لدے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر مہنگی چیزیں مزید مہنگی کی جا رہی ہیں۔ گھریلو استعمال کی چیزیں اب روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہو رہی ہیں، مگر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کاش کوئی فواد چودھری وزیر اعظم کو یہ بھی بتا دے کہ چینی اوپن مارکیٹ میں 115 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ کاش مشیران اور معاونین کی فوج ظفر موج وزیر اعظم کو بتائے کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا عوام 1500 روپے میں خریدنے پر مجبور ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے ہر بے نامی اکاؤنٹس کی ہر ایک ٹرانزیکشن پر نظر رکھنے والے کاش وزیر اعظم کو بتائیں کہ اب سستے یوٹیلیٹی سٹورز بھی سستے نہیں رہے۔ جا کر کوئی انہیں خبر دے انہیں کہ لائنوں میں لگے غریب عوام کے لیے اب چینی اور گھی یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی مہنگے ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو کوئی اطلاع دے کہ پرائیویٹ ملازمین کا تو پہلے سے کوئی والی وارث نہیں، مگر اب تو ملک بھر کے سرکاری ملازمین کی بھی بس ہو گئی ہے۔ وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے سراپا احتجاج ہیں، وہ بھی حکومت سے جینے کی بھیک مانگ رہے ہیں، مگر نئے پاکستان کا راوی ابھی تک چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ حکومتی ترجمان تعلیم دے رہے ہیں کہ ملک میں ایک مہنگائی کے سوا باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ جی ہاں، وہی ٹھیک جو آج لاہور کے شادرہ تھانے میں ہوا، جہاں ٹیلی ویژن کے ذریعے پورے پاکستان نے باغیوں کو تھانے میں سرنڈر اور پولیس کو بھاگتے دیکھا۔ جس تھانے میں 2 سابق وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، 3 آرمی جنرلز اور درجنوں سابق وزراء کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا، آج اسی تھانے میں نامزد باغی گرفتاری دینے پہنچ گئے۔ دنیا نے آج یہ تماشا بھی دیکھا کہ باغی ملزمان گرفتاری دے رہے تھے اور پولیس گرفتاری سے انکاری تھی۔ افسوس، صد افسوس کہ اداروں کو ٹھیک کرنے کے دعوے داروں نے آج پنجاب پولیس کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ مقدمے میں نامزد ملزمان تھانے میں تھے اور تفتیشی آفیسر مدعی سمیت غائب تھا۔ پرانے پاکستان کی کہاوت مدعی سست اور گواہ چست کو نئے پاکستان والوں نے آج مدعی سست اور ملزمان چست بنا دیا۔ السلام علیکم جی، وارم ویلکم۔ پریسٹیجیس پینلسٹ آپ کے سامنے رکھوں گی اسٹارٹنگ فرام دا لاہور اسٹوڈیو ایز پر دا سینیورٹی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی عظمہ بخاری صاحبہ، انفارمیشن سیکرٹری پنجاب ہیں، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کریں گے، ون آف دا فائنسٹ لیڈی فرام پی ایم ایل این۔ السلام علیکم، خوش آمدید، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آفتاب جہانگیر صاحب ہیں، ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں گے، ون آف دا فائنسٹ ممبرز فرام پاکستان تحریک انصاف۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ، ون آف مائی فیوریٹ پینلسٹ فرام پاکستان پیپلز پارٹی، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے،
होंगे, ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट करेंगी, बहुत देर के बाद आई हैं, शी वाज ट्रैवलिंग समवेयर इन बालाकंड, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू बीना साहिबा। मैं शो का आगाज आफ्ताब जहांगीर साहब आपके साथ करूंगी। भाई आपने पीपल्स पार्टी के साथ आफ्ताब भाई जो करना है करें, आपने पीएमएलएन के साथ जो करना है जो करें, आपने पीडीएम के साथ जो करना है करें, आपने जितना चाहे मर्जी इनका जीना धोबर और हराम करना है आप करें, पर अवाम को किस चीज की सजा दे रहे हैं? अवाम का क्यों जीना धोबर कर दिया आपने? बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और देखिए, ये जो आवाम को जीना दोबर हुआ है, ये हमारी वजह से कम, और जिनको आपने अपने साथ बैठाया है दाएं और बाएं, और जिनके लिए आपने इतनी बड़ी तफसील बयान की है कि जी वो चुस्त और वो सुस्त और वो ये सारा कुछ गद्दारी की और एफआईआर की जो आपने पूरी कहानी सुनाई है, ये उन्हीं का किया धरा है, ये हमारा नहीं है, समझे ना बीनी साहबा। ये उन्हीं का किया धरा है कि जब किसी चीज को आप दिवालिया कर दें, आप जिस चीज को बिल्कुल खजानों को खाली कर दें, उसके बाद उसके अंदर सिस्टम में लाने में बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। हमें भी एहसास है कि जी आवाम के अंदर मुश्किलात हैं, क्योंकि मैं आवाम में रहता हूँ। अच्छा। मैं कोई ड्राइंग रूम में या एयर कंडीशन कमरों में नहीं रहता, मैं सरजानी मंगोपीर के इलाके में घूमता हूँ। मुझे भी पता है कि वहाँ के आवाम की क्या परेशानी है, लेकिन ये कि उस परेशानी का हल निकालने की जरूरत है और उसके लिए हमें इक़दामात करने की जरूरत है। लेकिन उन चीज़ों को इसके साथ नथी मत करें जो आपने अभी अपने बयानिए में, आपने इब्तिदाइया में आपने बताया है, ये इन्हीं का किया हुआ है। अगर आपने अभी गद्दारी के सर्टिफिकेट्स की बात की, तो गद्दारी का सर्टिफिकेट भुट्टो साहब ने भी दिया था, जो आज भी इनके साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर लोग शामिल हैं, उनके वालिदैन के ऊपर भी किया था। उसके बाद काला कोट पहनकर नवाज शरीफ साहब भी कोर्ट में गए थे। तो ये सारी चीजें, हम नहीं गए कोर्ट के अंदर। और आपका कानून से अगर इजाजत देता है किसी भी शहरी को किसी मुकदमे के लिए, तो वो उसका इख्तियार है, वो चाहे तो जाके कोई एफआईआर कटवा दे और अदालत में जाए, अदालत में जाकर अपने आप को कहे कि जी मैं गद्दार नहीं हूं। लेकिन जिस दिन वो बयान आया बिनी साहिबा, जिस दिन वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस से बात की नवाज शरीफ साहब ने, उस दिन के चैनल्स उठा के देखें, आपके चैनल समेत सारे चैनलों ने वहां पर उस दिन 24 घंटे सिर्फ उसी बयान के ऊपर गुफ्तगू की। अगर वो इतना रेलिवेंट बयान नहीं था तो आपको उस पर बात करने की जरूरत नहीं थी। बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट आपने बिठाए, बड़े बड़े फॉरेन जो एक्स एम्बेसडर्स थे उनको बिठाया। सब ने ये कहा कि ये जो है ये मुल्क दुश्मनी के मुतारिफ है, ये हल्फ की दुश्मनी की है, हल्फ के साथ गद्दारी की है एक सीनियर आदमी ने, एक 3 दफा के वजीर आजम ने। तो इसलिए उसको उस बयाने का बिल्कुल अलग है, लेकिन जो लोगों की परेशानी है वो अपनी जगह पर है और उस पर हमें काम करने की जरूरत है। लोगों की परेशानी अपनी जगह पर है, उस पर काम करने की जरूरत है। यही मेरी पंच लाइन है जो मुझे आपसे चाहिए थी, इसी को मैं आगे लेके जाऊंगी। बाकी सारी जो आपने बातें की वो आपका कथारसिस है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने सुना, प्लेटफॉर्म हाजिर था, आपने अपनी मर्जी की बात की। अब मैं सवाल की बात करूंगी। जो आपने कहा कि उनको एड्रेस करने की जरूरत है, अवाम के जो मसाइल हैं, क्या शिबली फराज साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया ये कि क्या मामलात हैं, आटा कहां पहुंच गया है, चीनी कहां पहुंच गई है? आपको 51 रुपीज पर मिली थी सर, आप कह रहे हैं ना इन्हीं लोगों ने। ये मैं इनकी स्पोक्स पर्सन तो ऑब्वियसली नहीं हूं, ये ऑब्वियसली अपनी बात खुद करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनके दौर में 51 रुपीज पर किलो चीनी मिल रही थी। आज वो चीनी 115 रुपए की है। पहले वाले दौर में कितनी थी? उससे पहले वाले दौर में कितनी थी? उससे ये भी कम थी। के साथ ग्रेजुअली चीज बढ़ती है, लेकिन उसके लिए मैं इसके कोई उसको वो नहीं पेश कर रहा कि जी ये सही है या गलत है। नहीं बढ़ती, 2 सालों में डबल से ज्यादा हो जाए। परेशानियां हैं, लेकिन ये परेशानियां किसकी पैदा करता है बेनी साहब? ये परेशानियां किसकी पैदा करता है? आपने अभी बात की, आपने आज बात की सरकारी मुलाजमीन की कि वो उनकी चीखें निकल गई हैं और वो जाके पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ गए 3000 4000 सरकारी मुलाजमीन। क्या आप मीडिया के उन लोगों की बात कर सकती हैं कि वो जो जिनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? सर मैंने सबसे पहले वही बात की कि प्राइवेट मुलाजमीन का कोई वाली वारिस नहीं है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सरकारी मुलाजमीन को ये पता है कि हमारी नौकरी सेफ है, हम एहतजाज भी करेंगे तो हमें निकाल कोई नहीं सकता। आफ्ताब भाई, तो फिर इसकी भी बात कर लेते हैं ना कि बदकिस्मती से ये हुकूमत ही होती है जो प्राइवेट मुलाजमीन को उनकी नौकरियों से निकलवाती है। सरकारी बंदे को तो हाथ क्या कहते हैं लगाते हुए 10 दफा सोचते हैं। कितने एंकर्स को घर बिठाया हुकूमत ने? नहीं सर, कितने एंकर्स को हुकूमत ने घर बिठाया? 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, उनके फ्रांस के टूर तो खत्म नहीं हो रहे, उनके हर साल का नया मॉडल तो खत्म नहीं हो रहा, देखिए हमें 6 महीने से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अच्छा, अब मेरी बात सुने, महंगाई के अलावा और कोई मसला नहीं है क्या? महंगाई आपकी नजर में इतना मामूली मसला है कि सिर्फ यही मसला और उसके महंगाई ही तो सबसे बड़ा मसला है? सर बेसिक मसला है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, एनआरओ मानना चाहिए, अपनी करप्शन की बात नहीं करनी चाहिए। महंगाई के ऊपर जितनी मर्जी एहतजाज करें हम वेलकम करेंगे।
ठीक है जी। अजमा साहिबा, जितने चाहे मर्जी आप महंगाई पर एहतजाज करें, ये वेलकम करेंगे, एनआरओ मांगेंगे तो वो नहीं मिलना आपको। अच्छा, पहले तो ये है कि ये बहुत पिटावा जुमला हो गया, एनआरओ नहीं देंगे। वो जिनको आपने एनआरओ देने थे वो दे लिए, तो बस हमें तो एनआरओ मतलब अभी आप हो गया ना आफ्ताब भाई, जुबैर साहब बात करने मैं आ रही हूं, जुबैर देना, साहब। आप अपनी बारी में बोलिएगा ना। 4-4 घंटे की 2 मीटिंग करके नहीं है। हो गया ना, ऊंचा बोलने से आफ्ताब साहब और मेरी बारी में बोलने से महंगाई कम नहीं हो जाएगी। जो आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं उनको आटा नहीं मिल जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही आजकल खतूने अव्वल कहाँ मसरूफ हैं, वो क्यों नहीं बता रही है? 2018 के अंदर आप तकरीरें करती थी पीपल्स पार्टी के बारे में, उससे भी वो खत्म नहीं हुआ मसला। ये कोई तरीका है? जरा आफ्ताब भाई प्लीज अपनी बारी पे बोलिएगा। आपकी इज्जत कर रही हूँ तो जरा इज्जत करवा लीजिए। आपकी बारी में मैंने नहीं बोला ना, आपको वन साइडेड टाइम मिला। ये गुंडागर्दी कहीं और जाके कीजिएगा। कराची वालों को जो आदत पड़ी हुई है ना गुंडागर्दी करने की, ये यहाँ मेरे सामने नहीं चलेगी। अपनी बारी में बोले, आपको जो भी आप कहेंगे मैं सुनूंगी। मेरी बारी में आप बोलेंगे, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। अच्छा, बारी पे बोलेंगे सब। मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, आप बड़े हैं तो इज्जत करवाइए, मेहरबानी कीजिए। आपकी बौखलाहट ने मुझे परेशान कर रही है इस शो के अंदर। नजर आ रही है आपको सारे ऐसे चीख रहे चिल्ला रहे हैं, ऑपोजिशन का मौका आ गए। अच्छा चले आजमा स्टार्ट करें। मैं फिर वही कहूंगी जो मुझे कहना है वो तो मैं कह के रहूंगी। जी। खातून अव्वल आजकल लगता है कुछ ज्यादा मसरूफ है, वो वजीर आजम को नहीं बता रही कि लोगों के मसाइल बढ़ गए हैं। इसका एक और हल है, इसका और चूंकि वजीर आजम को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, ये भी हमारी बदकिस्मती है। एक एटॉमिक कंट्री है और उसके वजीर आजम को कुछ भी पता नहीं होता। वो अपनी सालगिरह का केक काट रहे होते हैं तो गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अब उनको कोई पूछे कि जो महंगाई जो है, जो आटा चीनी जहां पहुंच गई है, इसका हल यह है कि एक वजीर बराए इतलाए वजीर आजम रख लें। देखिए ना, बाकी आपने 50-60 हक तो लिए हैं, एक और ऐड कर लें, किसी और को नौकरी मिल जाएगी। कोई बड़े बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं ये पीटीआई वाले, तो वजीर बराए इतलाए वजीर आजम रख दें, शायद उससे को पाकिस्तान के मसाइल का हल निकला है। अफसोस की बात यह है कि बात करने से पहले अपनी गिरेबान में यहाँ झांकता कोई नहीं। सारे माफिया अपनी जेब में आपने रखे हुए हैं, उनको बैठाया हुआ है, और टैक्स चोर रखे हुए हैं। आप जरा इनकी डायरेक्टरी तो निकालिए ना, इन सब की जो बड़े बड़े अमीर ज़ादे और अरबपति कब्जा ग्रुप बैठे हुए हैं, इनकी जरा निकालिए ना, डायरेक्टरी निकालें टैक्स की, किस किस ने कितना कितना टैक्स दिया। शुरू करें वजीर आजम से। वो कहते हैं मेरा 2 लाख रुपया, जिस मुल्क का वजीर आजम 300 कनाल के महल में रह के 2 लाख रुपए के करीब टैक्स देता हो ना, और उसकी 2 लाख रुपया तनख्वाह के अंदर गुजारा भी ना होता हो, तो वहां पर तो किसी टैक्स चोर को बोलना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, आपने महमद डैम के ठेके से शुरू करें, और आज तक जो अद्वियात तक आ जाते हैं, जितना माफिया है उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या निकला कि आप उस माफिया को खुली छुट्टी दे दें। और अब कल जो है वो कैबिनेट के अंदर नवाज शरीफ ने खाया क्या, नवाज शरीफ उठा कितने बजे, नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है, नवाज शरीफ को सुलाना कैसे है, इन बातों के अलावा तो कुछ किसी को लेना देना नहीं है। नहीं पता कि आटे की कीमत कैसे कम करनी है, नहीं पता। पाकिस्तान की तारीख में डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। हम एक ज़राई मुल्क हैं, पहली दफा बाहर से गंदम भी मंगवा रहे हैं, और अभी कटाई को 3-4 महीने हुए हैं, और हमारे मुल्क में गंदम 2400 रुपया मन हो गई है, और 1500 रुपया का जो है वो थैला मिल रहा है। बिल्कुल। क्या बातें करते हैं और कहां बैठ के ये बातें करते हैं। माफियाज का हल ये है कि आप अब अद्वियात की आपने कीमत बढ़ा दी। वो माफिया चूंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था, अद्वियात की कीमत बढ़ा दी। अब आपको ये अंदाजा है कि आप अद्वियात मिलेंगी भी ना तो लोग अफोर्ड नहीं करेंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मुझे बताएं, इंसुलिन की कीमत में जो आम आदमी को, और हमारे मुल्क में डायबिटिक जितने लोग हैं, जितने परसेंट है उसका अंदाजा लगाई, इवन जो जच्चगी के अंदर दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उसकी कीमत में 200-250% इजाफा है। मतलब आपको शर्म नहीं आती। और अभी कल वजीर आजम ने कैबिनेट के अंदर दोबारा जो है वो एक लाइन आई है, कैबिनेट ने जो इजलास किया नवाज शरीफ के अलावा, उसमें यह था कि दोबारा उन्होंने जो है जखीरा अंदोजों पे हाथ डालने की, तो वो कल से आटा और चीनी थर थर कांप रहे हैं कि ओहो हम पे जो है वो नोटिस ले लिया है, और इंशाल्लाह ताला इस नोटिस लेने के बाद आटे की कीमत में 50 रुपए इजाफा होगा और चीनी की कीमत में 25 रुपए इजाफा होगा। ये आप लिख लीजिए। चलिए मैं वापस आती हूँ। रुबीना खालिद साहिबा, कब आप लोग एहतजाज मुजाहिरा कर रहे हैं महंगाई के ऊपर? क्योंकि सिर्फ महंगाई मसला है इस हुकूमत का और आज की आवाम का, इसके अलावा बाकी सब इस हुकूमत ने सेट कर दिया, ठीक हो गया बाकी सब चीजें। देखिए, जो बहुत अफसोस की बात है, मैंने सारी गुफ्तगू सुनी और इस पे अफसोस करने के अलावा मैं कुछ कह नहीं सकती कि देखिए, उल्टा बजाय आपकी बातों का जवाब दिया जाए, बजाय कि कोई ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात की जाए, बजाय इसके कि कोई ठोस दलाइल दिए जाएं, आपको ये बता दिया गया कि देखें जो प्राइवेट सेक्टर में मीडिया के लोग हैं उन्होंने भी जो है तो लोगों को निकाल दिया, उनकी तनख्वाहें नहीं दी। देखें, यहाँ हम कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बैठे हुए,
यहाँ हम बैठे हुए हैं, जो मसले हैं इस वक्त अवाम के, और उसमें मेरे भाई ने बिल्कुल कहा कि एक ही मसला है कि जब पेट की रोटी ही पूरी नहीं होगी तो फिर बाकी मसले जो हैं वो उसके आगे जो हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो जब आप खाना पीना ही नहीं पूरा कर सकते एक फैमिली, और मैं ये समझती हूँ बीनेश कि जो हक हलाल की कमाई इस मुल्क में खाता है, जो अपने पैसों से जाकर बाजार से अपनी अशिया खरीदता है, वो चाहे अगर बहुत अपर क्लास से भी है, मिडिल क्लास से भी है, या लोअर मिडिल क्लास से, उनको तो आप बिल्कुल बेचारों को बिल्कुल किसी काबिल नहीं छोड़ा इस हुकूमत ने। इस वक्त सब जो है, हर तबका फिक्र जो है वो इस महंगाई को जो है वो फील कर रहा है, उसको तंग है इससे। बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ क्योंकि हर जो है जिसकी तनख्वाह लाख रुपए है उससे भी पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, अगर बिजली के जो बिलों की हालत है इस वक्त, ये महंगाई तो सिर्फ अगर एक आध चीज की होती ना तो चले हम बर्दाश्त कर लेते, खाना पीना महंगा हो जाता तो चलो हम कहते कि चलो 2 टाइम नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक टाइम पे आ गए हैं खाना खाने पे, क्योंकि वो 2 टाइम खाना उनके लिए पूरा करना मुश्किल हो गया है। बिजली का लोगों ने, एक तो होती नहीं है बिजली, जब आती है तो बहुत कम आती है, उसके पर जो बिल आते हैं वो सब आपको पता है। उसके अलावा गैस, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, वजीर आजम साहब को इल्हाम हो गया, उन्होंने कहा कि गैस शॉर्टेज होगी और गैस महंगी भी होगी। ये सारी चीजें जो हैं, लेकिन इस पे जो सब्र नहीं हुआ इनसे, जो वो मैं कहती हूँ कि एक मुजरमाना फेल इन्होंने किया है, वो है अद्वियात की दवाइयों की कीमतों में इजाफा। मुझे अब ये बताएं कि चले उसका इलाज तो हो गया, खाना आपने 2 नहीं तो 1 वक्त खा लिया, बिजली ये का इलाज हो गया कि आपने कोई ना घर में आप वो भी ना जलाएं, एक बल्ब भी ना जलाएं, चले उसको भी कुछ ना कुछ उसमें लेंगे तरीका का। लेकिन दवा जो है अभिनेश, वो तो पूरी चाहिए ना, ये ना दवा में तो कोई कट डाउन नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर ने कहा है कि 2 टाइम इंसुलिन लेना है या 2 टाइम ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है या और अद्वियात लेनी है, तो उसको मुझे बताएं कि वो किस तरीके से जो है वो कट डाउन करेगा। वो अपनी तनख्वाह में, जिसके घर में एक आध जो बीमार है या 2 बीमार है या और उसके मसाइल हैं, बच्चों की फीस है, ये सारा कुछ, ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो कल आपने देखा जो एहतजाज हुआ सरकारी मुलाजमीन का, देखें, और ये देखें इसको कितना इन्होंने लाइटली ले लिया कि जी सरकारी मुलाजिम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनको कोई निकाल नहीं सकता। अब ये देखें, अब ये कोई किस किस्म की दलील है? अभी मतलब इस पे इंसान को अफसोस ही क्या हो सकता है ना कि आप अगले की मजबूरी को मजाक बना लें, अगले की मजबूरी पे आप जग हंसाई करें। तो ये सारी बातें जो हैं, अगर जिनको जमीनी हकायक, जिस हुकूमत ने अवाम के ऊपर इस किस्म के, और मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है जो इस वक्त, और ऊपर से ये है कि वो कहते हैं ना मारे भी और रोने भी ना दे, ये वो हुकूमत मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आफ्ताब जहांगीर साहब से इसका जवाब भी जानेंगे, और साथ ही साथ जो मेरे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने आज एक मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये जानना चाह रहे थे कि मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट कहां से मिलता है, इस पर बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है जी। आफ्ताब जहांगीर साहब सिटिंग एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अजमा बुखारी साहिबा पीएमएलएन से, सिटिंग एमपीए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। आफ्ताब जहांगीर साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए वक्त की कमी के बाइस। वो जो बागी अरकान थे, जो गद्दार अरकान थे जिनके ऊपर FIR भी कटी थी ये लाहौर शादरा में, आज वो पहुंचे शादरा थाने कि जी मुझे गिरफ्तार कर लें, जो करना है हमारे साथ करें, लेकिन वहां पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टा वहां पर जो पुलिस ऑफिसर मौजूद था वो कह रहा था कि भाई हम आपको पूरा मौका देंगे, हमारी आपके साथ किसी किस्म की कोई जाती दुश्मनी नहीं है। सीधा सा सवाल है, अगर आपने अपना मजाक बनवाना था, आप खुद प्रिपेयर्ड नहीं थे इस पूरे फीडबैक के लिए, इस पूरे रिएक्शन के लिए, आपने पुलिस जैसे इदारे का क्यों मजाक बनवा दिया? अच्छा देखिए बेनिश, पहली बात तो ये, क्या आइन में कोई पाबंदी है? अगर आइन में पाबंदी है कि जी कोई भी शख्स जाके किसी के खिलाफ मुकदमा कोई दर्ज नहीं कर सकता या कर सकता है, तो वहाँ की जो भी शादरा की जो SHO था या थाना था उसको चाहिए था। और जैसे अभी बात एक किसी ने मेरे साथ की थी कि जी उसका था थाने के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है उस शख्स का, तो क्या थाने वालों को नहीं पता था कि ये शख्स के ऊपर तो ऑलरेडी मुकदमा है और ये कैसे किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर सकता है? तो वो दर्ज किया गया है। आज इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन लोगों के पे दर्ज हुआ है, तो अदालतें हैं जहां पर ये पहले भी इंसाफ इनको मिलता है,
تو وہاں سے یہ اپنا انصاف لے لے اور اپنے آپ کو جو سرٹیفکیٹ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا تو وہ عدالتیں ہی دیں گی ان کو کہ جی یہ محب وطن ہونے کا، ایک عدالت دے گی ایک عوام دے گی. لہٰذا کوئی میں اور آپ تو نہیں بانٹ سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر محب وطن ہے، ہر پاکستانی محب وطن ہے. لیکن آفتاب جہانگیر صاحب اصل میں یہ سرٹیفکیٹس تو میں اور آپ ہی بانٹ رہے ہیں. ہیں کہ ان کے ایکٹ بتاتے ہیں، شاید بینش ان کے ایکٹ بتاتے ہیں کہ محب وطن ہے یا نہیں. وہ بتاتے ہیں کہ مری کے اندر دعوت کیسے دے. اچھا سن لینا آفتاب، میرا کاؤنٹر تو سر تھوڑا سا سن لینا. آفتاب بھائی، تاریخ میں آج تک کسی عدالت نے کسی کو بھی غدارنے کا سوائے ایک کے باقی سب کے سب محب وطن ہے. تو عدالتیں تو یہ تو سرٹیفکیٹس آپ اور میں ہی بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، عدالتوں کو اس بیچ میں نہ لائیں آپ. یہ بھٹو صاحب نے کن لوگوں پہ غداری کے مقدمات بنائے تھے اور غدار قرار دیا تھا؟ اور کالا کوٹ پہن کے کون عدالت میں گیا تھا؟ نہیں سر، عدالت کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں نا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں. عدالت یہ ہسٹری موجود ہے، کسی بھی فیصلے میں آپ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر عدالت نہیں کرے گی، اگر ماضی میں دیا لیکن بعد میں وہ اگر آج عدالت کہہ دے گی نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. جیسے ماضی کوٹ پہن کر گئے، عدالت نے دیا یا نہیں دیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک آپ کسی سے یا تو آئین کے اندر کوئی ایسے آپ امینڈمنٹ لے آئیں کہ جی کوئی شوائے ریاست کے کوئی کسی کے اوپر غداری کا مقدمہ نہیں قائم کر سکتا. تو یہ عدالت اگر آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے تو وہ تو پھر جو انویسٹیگیشن والے ہیں یا تھانے والے ہیں یا پولیس والے وہ مقدمہ ہی درج نہیں کریں گے. آ گیا پوائنٹ. عظمت صاحبہ، یہ اب آپ نے سن لیا کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، اینی بڈی کین گو رجسٹر این ایف آئی آر. تو میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں انہی کے کہنے پہ کہ آپ بھی کل جائیں، جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ڈی جی فارمر ڈی جی ایف آئی اے کے انٹرویو کے بیس کے اوپر وہ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ایک سیاسی بیان تھا کہ واقعی کل پرسوں شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہم دیکھیں گے اسی شادرہ تھانے میں جائیں گے اور پرائم منسٹر صاحب کے خلاف مقدمہ درج کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ گورننس کے طور کے اوپر اور ملک چلانے کے اوپر تو نالائق اور نااہل ہیں ہی ہیں. ان کو قانون اور آئین کا بھی نہیں پتا. کاش ان کو کوئی قانون اور آئین کسی وقت پڑھا دے. جو شکیں لگائی گئی ہیں نا 121, 122, 123, 125 تک جتنی شکیں ہیں، ضابطہ فوجداری جو پاکستان میں ہے اس کی 196A کی شک کے تحت وہ بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر آپ نے 121, 122, 123, 125 لگانی ہے تو وہ وفاقی حکومت اور کیبنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتی. آپ مجھے بتائیں یہاں پر کہاں سے آئی تھی؟ پھر آئی ہے نا. اگر کیبنٹ کی اجازت ضروری ہے، قانون کہتا ہے، تو یہ شکیں لگائی گئی ہیں ہماری ایف آئی آر کے اندر، تو پھر اجازت آئی بھی ہوگی. اور پھر میں کیسے مانوں کہ وزیر اعظم اتنے معصوم ہیں؟ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ نیریٹو انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ انڈیا اس کے پیچھے ہے اور فلانا اس کے پیچھے ہے اور وہ تو یہ نیریٹو انہوں نے دیا. اور ان کے کہنے پہ یہ اتفاق ہے، وہ یو سی چیئرمین کا الیکشن لڑ چکا ہے، یہ بھی اتفاق ہے، وہ گورنر سرور کا بڑا چہیتا ہے، یہ بھی اتفاق ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں اور اس کا کرمنل ریکارڈ ہے. اور ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ پولیس والوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر کیس ہیں. یہی تو ہمارا سوال ہے آپ سے کہ پولیس والوں کو کیوں نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر کیس ہیں؟ اور آپ نے پورے پاکستان کی جو ایک پارٹی کی قیادت ہے اس کو آپ نے اس میں بک کر دیا اور پھر آپ کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ آپ اس کے اندر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ڈال رہے ہیں. آپ نے جو یہ کشمیر کاز کے ساتھ مہربانی کی ہے نا، پہلے تو سکوت کشمیر کیا سو کیا، اس کے بعد جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو 72 سال تک کشمیر علیحدہ نہیں ہوا، انہوں نے کر کے دکھا دیا. 72 سال تک آزاد کشمیر کے کسی وزیر اعظم کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج نہیں، انہوں نے کر کے دکھا دیا. یہ اینٹی کشمیر کاز، یہ ہے ان کی اسٹریٹجی کشمیر کے حوالے سے. 2-3 باتیں مجھے ضرور کرنی ہے جو مہنگائی کے حوالے سے ہے، چونکہ یہ ہماری باتیں ہیں، یہ جو مرضی کریں. میں کہہ رہی ہوں کھل کے سامنے آئیں. اپنی مدعیت میں عمران خان ولد اکرام اللہ نیازی اپنی مدعیت میں ہمارے خلاف بغاوت کا مقدمہ کریں، اس کے بعد ہم کورٹس میں جائیں گے، اس کو فیس کریں گے. اب ٹانگوں پہ کھڑے ہوں، ذرا تھوڑی ہمت کریں. اگر اتنا شوق ہے نا بغاوت کے مقدمے کرنے کا، ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ جو مہنگائی کی تعریف ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے مہنگائی کی ایک تعریف اپنی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دی تھی، اور وہ کیا تھی کہ جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو اوپر بیٹھنے والا چور ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے، اب اوپر بیٹھے والے کو کیا کہوں؟ یہ بتائیں گے یا میں بتانا پسند کروں؟ تو یہ ڈیفینیشن انہوں نے دی تھی ہمیں. آج عام آدمی کے مسائل آپ نے واقعی روبینہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ کی ہر چیز میں طنز ہے، آپ کی ہر چیز میں ایک ٹینٹرم ہے، پتہ نہیں کس چیز کے، نالائکی اور جو نااہلی ہے اس کی پیک پہ ہیں آپ، لیکن آپ کے ٹینٹرم ختم نہیں ہوتے. وہ دیکھیں گے یہ عوام کے بیچ میں یہ بیچارے جہاں جہاں باہر نکلتے ہیں، وہ تو آپ نکلتے ہی نہیں. عمران خان آج 2-2.5 سال میں عوام میں نہیں جا سکے، اور جو جاتا ہے وہ عزت افزائی کرا کے آتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن
महंगाई ज्यादा है तो क्या हुआ, मसाइल ज्यादा है तो क्या हुआ। आपको याद है ना, हमने आके वो भैंसें बेची थी वजीर आजम हाउस की, हमने वो की थी। ऑस्टेरिटी ड्राइव 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ऐवान सदर के हवाले कर दी गई हैं आज। ये है ऑस्टेरिटी, ये है मुनाफिकत का दूसरा चेहरा जिसका नाम है पीटीआई। इन्होंने नहीं लेना था प्रोटोकॉल। आपके इनके इतने बेचारे उगे भी नहीं है अभी, वो इतने जो है वो पीछे पुलिस की स्क्वाड लेके फिर रहे होते हैं। मैं हैरान होती हूँ, अल्लाह तेरी शान है परवरदिगार, तू देने वाला है वाकई कि जो है वो जिनकी काउंसलर होने की औकात नहीं थी, आरटीएस बंद करा के तूने उनको वफाकी वजीर बनवा दिया। कमाल हो गया, तूने उनको एमएनए एमपीए बनवा दिया। तेरी जात बेनियाज है। और या उसके बाद जो नीचे इनके मददगार हैं उनकी मेहरबानी है इनके ऊपर। रुबीना खालिद साहिबा, आपने तमाशा देखा जो शादरा थाने में आज लगा, पूरा दिन टेलीविजन पे उसके ने लाइमलाइट बटोरी। जो वहां पे पुलिस ऑफिसर मौजूद थे वो यही कही जा रहे थे, पीएमएलएन के जितने भी बागी और गद्दार लोग वहां पहुंचे, जुबैर साहब, अता तारर साहब वहां पर मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि भाई आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, तफ्तीश का इक्वल मौका दिया जाएगा, हम बिल्कुल तरीके से इस चीज को लेकर चलेंगे। आज भी क्या आप उस पुलिस ऑफिसर को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे जिस तरह से हमारी हुकूमत कह रही है कि क्या उस पुलिस वाले को नहीं पता था, या फिर आप हुक्मरानों के ऊपर उंगली उठाएंगे कि भाई आप लोगों ने तो इदारों को स्टेबल करना था, इदारों को मजबूत करना था? जी, बात तो ये है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इतनी बड़ी एफआईआर जो है बगैर किसी हाई अप के कहने से वो लिख ले। ये देखिए, हमें अपना कल्चर मालूम है, हमें अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो मालूम है। एक थाने की एसएचओ की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो एक नहीं दो वजीर आजमों के, एक तो हमारे साबिक वजीर आजम है, एक सिटिंग वजीर आजम है आजाद, और वो भी बड़े सेंसिटिव मामला है क्योंकि वो आजाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। किसी देखिए कोई वो टॉम डिक हैरी के खिलाफ तो मुकदमा नहीं लिखवाने लाया था कि इनको पता ही नहीं था, इन्होंने लिख लिया और इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करी। तो ये सोची समझी स्कीम के तहत किया गया है और ये मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए किया गया है, और ये इसलिए कि इनकी जो नाअहली है, इनकी जो नालायकी है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। आप देखिए, जब भी एक कुछ अरसे बाद एक नया शोशा खड़ा कर देते हैं, कभी किसी सूरत में कभी किसी सूरत में, ये इनका लेटेस्ट शोशा है ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो लगी रहे, मीडिया की तवज्जो। अब देखिए, कल आपने देखा कि इस्लामाबाद में हजारों की तादाद में जो है सरकारी मुलाजमीन सड़कों पे निकले, वो उस तरह से मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुआ। अब मैं और आप बैठ के क्या बातें कर रहे हैं कि और कल से हम यही इसी पे लगे हुए हैं कि एक एफआईआर दर्ज हो गई है और बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। ये इनकी सारी गिमिक्री है, ये इसमें आपको उलझा देते हैं इन बातों में। असल जो पीछे काम उन्होंने करने होते हैं, उल्टे सीधे बगैर डिसाइड किए हुए लोगों की तकलीफ का इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो जाता है कि इनको कुछ पता नहीं है कि आम आदमी पे, एक आम शहरी पे इस वक्त क्या गुजर रही है। ये इसी अपनी लगे हुए हैं। और एक जो बेसिक बात ये है बीनेश, के इनका जो नैरेटिव था ना, जो इन्होंने दिया था लोगों को कि जी हम तो करप्शन खत्म करने के लिए आए हैं, हमने जो है ना वो 90 दिन में लोगों के मसले हल कर देंगे, अब वो पिट गया इनके बयानिया। अब इनके पास लोग अब इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप उनके साथ तो जो भी करेंगे, वो अपने मुकदमात झेल भी रहे हैं, जेलों में भी हैं, आपने उनको बंद भी कर लिया है, आप उनको अदालतों में लेकर भी जा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। Exactly. लोगों को तो इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सवाल बिल्कुल होगा कि अवाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है। मुझे ब्रेक लेने के लिए क्या किया। ऑल राइट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। वापस आते हैं इस वक्फे के बाद। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके लीडर, आपकी पार्टी अपने आप को नजरियाती लीडर, नजरियाती पार्टी मांगती है, लेकिन जो नजरियाती पार्टी या नजरियाती लीडर होते हैं उनका जो नैरेटिव होता है, जो बयानिया होता है, वो पल में तोला पल में माशा नहीं होता। 2 साल आप लोगों ने पूरा बिल्डअप करके हम लोगों को, आवाम को ये बताया कि ये लोग चोर हैं, ऑपोजिशन। अब आप 2 साल के बाद पिछले 1 हफ्ते से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ऑपोजिशन गद्दार है, और फिर आज से फिर पता चल गया कि जी ऑपोजिशन गद्दार नहीं है, बागी नहीं है, ऑपोजिशन वापस चोर हो गई। तो बयानिया तो एक होता है ना। अच्छा विनेश, पहली बात तो ये कि जहां तक चोर और डाकू की बात है,
वो तो मैं बहुत बड़ा अरसे से जो है ना मेरी बहन उस्मा बुखारी को सुनता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, उनकी बातचीत को बड़ा गौर से सुनता हूँ। तो अच्छी बात है। कोई एक क्लिप चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर, जब वो पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी तो जो उनकी थी राय वो नून लीग के बारे में वो सबके सामने है। और उसी तरह पीपल्स पार्टी वाले जो 2018 के इलेक्शन में और उसके बाद जो कुछ बातें करते थे वो भी सबके सामने कि कौन किसको चोर और डाकू बोलता था। तो एक बात तो ये कि उस पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी और वैसे भी हम पर किसी ने कोई चोरी और डाकू का इल्जाम नहीं लगाया। रह गया जहां तक सवाल गद्दारी का और असल के बात का, बात देखें बेनिश मैं आपको इस अच्छा आफ्ताब साहब खुद भी हंस पड़े हैं। मैं सॉरी, हम आपको- सिर्फ हंस रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा। ये आफ्ताब साहब खुद भी अच्छा हंस रहे हैं। हंसनी उस्मा बहन मेरी हंसो नहीं, ये आपने अभी एक क्लिप चल रहा है कि जो आप कहती जी, थी मैं देती वो हूँ आपके जवाब। सबके सामने है। बड़ा मैं जवाब नहीं कहता दूंगी, आप था, बात वो पूरी आप कर कहती लें। थी जो हाँ, पीपल्स मैं पार्टी कहती- के बारे में हाँ, आपका बात पूरी नैरेटिव कर था लें, कर लें, वो कर सारी दुनिया को पता है। इसके अलावा लेकिन कुछ मेरा और यह कहना है तो कहना कहें, है कि हाँ। अखलाकी तौर पे हमें इतना ठीक है। मजबूत होना सही चाहिए बात। कि हम किसी के ऊपर इल्जाम, मैंने आज तक कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया कि कोई चोर है कोई डाकू है। कोई मुझे बता दे कि मैं बिनीश आजाद आपके साथ सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूँ, सबके साथ करता हूँ, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। सर, खान और साहब ना ही तो मैं कहते जलसों हैं में ना, कहता हूँ, ना ये ही लोगों में कहता हूँ। 126 मैं दिन कहता हूँ कि मुझे कंटेनर्स पे भी अपना खड़े जवाब होके देना कहते है। रहे, अभी भी कहते लेकिन हैं, मेरी recent सुन ले interviews बात, में भी कहते अच्छा हैं, मेरी जी। बात सुन लें जी, आप जी, बेनिश, जी। मेरी बात सुन लें कि ये सारा नैरेटिव जो गद्दारी का था, ये सारा कुछ था, उस दिन के सारे मीडिया उठा के देख लें, उस दिन के सारे एंकर उठा के देख लें, उस दिन के सारे डिफेंस एनालिस्ट उठा के देख लें, उनकी क्या राय थी। क्यों मीडिया ने इसको, अगर इतना रेलिवेंट मौजू नहीं था तो उसको क्यों 24 घंटे तक पीते रहे, जैसे आज शादरा को पी रहे ठीक हैं, है। इसी तरह ओके। उसको क्यों पीते रहे कि जी नवाज शरीफ ने ये गलत का बात की है, नवाज शरीफ ने ओथ से गद्दारी की अपने। तो ओके। ये सारे वहाँ बड़े बड़े एनालिस्ट आके बैठते थे, तजियाकार डिफेंस भी और सियासी पता तजियाकार नहीं आप उन किस सब किस की राय डिफेंस देखें, आप एनालिस्ट उठा की के बात देख कर लें। रहे हैं, आप तो किसकी बात कर रहे हैं। खैर, मैं हम पर जवाब जो ले है, लेती हूँ, आफ्ताब मैं जवाब ले लेती हूँ, आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है। जी अजमा। देखिए, पहले तो मेरी बात यह है कि प्यारे भाई बहुत शुक्रिया, आप मुझ पे इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत अपने वजीर आजम पे भी कर लिया करें। और उसके इर्द गिर्द जो ऑल पार्टीज वो तो कॉन्फ्रेंस मैं है तो ना, करता ही हूँ, अच्छा आप हो तो गई मेरे- ना, आपकी बात होगी, ऐसा ना ये ना किया करें, ये अच्छी बात नहीं है, फिर मुझे आपको बिल्कुल तल्ख जवाब देना पड़ता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जरा फवाद चौधरी के निकालिए, वो तो जानवरों से तशबीह दिया करते थे पीटीआई वालों को। वो आपकी फिरदौस आशिकवान, ये आपके तर्जुमान रहे हैं सारे, मैं उनकी बात करी। शाह महमूद कुरैशी कहां से आए, जहांगीर तरीन कहां से आए, खुसरू बख्तियार कहां से, लंबी लाइन है भाई, इसीलिए आप पीछे बैठे हैं, वो सारे आगे हैं, ठीक है। तो जरा और अगर कोई मजीद आपको अगर तसल्ली करानी हो तो वजीर आजम के अपने जरा बयानात निकाल के देखिए, वो आपके मुल्क की फौज के बारे में, आपके मुल्क की एजेंसियों के बारे में क्या कहते हैं। और इखलाकी तौर पर वाकई इतना मजबूत होना चाहिए इंसान को कि ज़कात और खैरात चोरी करने के बावजूद उसको कोई फर्क ना पड़े, उसके 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो है वो पेंडिंग पड़े हो, लेकिन वो अपने आप को सादिक और अमीन डिक्लेयर कराता फिरे। उसकी जो मनी ट्रेल है, नहीं जज्बाती नहीं, मैं होती, मैं करती होती नहीं, जो मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल जो है वो मियां बीवी के बीच में, आदमी का बेटा, मेरा दादा तो मजदूर था। चले हो गया ना, हो गया। और आज अरबों खरबोपति कहां से बन गया। बात करें आफ्ताब साहब, मियां बीवी के बीच में अरशद खान की गलत मनी बात कर ट्रेल रही हैं कैसे एक्सेप्टेबल होती है। रुबीना साहब, आप मुझे बताने वाले कोई नहीं होते, रुबीना मैं साहब, कैसे कहूंगी और क्या कहूंगी। आप आपका मीडिया के लीडर अंदर ज़कात कहते चोर थे, है, ये मेरे आपका जराए लीडर हैं। खैरात मैं कहती चोर थी, है, मरियम नवाज आप साहब सारे कहती थी टैक्स कि चोर एक हो, अकाउंट, आप एक लूट मेरी के खा प्रॉपर्टी गए हो, साबित कर दें आप। हमारे मुल्क का आटा चीनी खा गए हो आप लोग, समझे ना, आप तो लूट के आप इतने खा के दोनों लतीफ़े हो। तरफ से मिलकर आप खाते इतने रहे लूट करप्ट हो, को। कभी माफिया आप के पीपल्स सरदार पार्टी हो। से खाती रही हैं, कभी सारे आप इधर आ माफिया गई रखे हुए हैं। हैं। आप पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड में मार ही खाती बात तो थी, सुने, तुम लोगों की तरह चूरी नहीं खा रही थी, मार नहीं खाती थी, चूरी नहीं खा रही तुम लोगों की तरह, हल्के बजाए अपने, हल्के बजाए। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे, फीडबैक का इंतजार रहेगा।